So, how do you know your candidate? This application, KYC, is another application which you can download and become a very informed voter. You can know the details of your candidate fully. Through voter helpline, you can know even the location of your booth. That's a separate application, but I am focusing now on this. If any candidate has a criminal background, all details would be here in this application. This would be pre-populated the moment the nomination form is filled by the candidate. We'll fill it up in the moment. अगर उनके ऊपर में कोई क्रिमिनल केस है, तो उनको 3 बार thrice in local पेपर्स, न्यूज उनको पब्लिश करना है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी उनको टिकट दिया है उनको भी पब्लिश करना है। ये हमारा मैंडेट है। और पब्लिश करने में ये भी बताना है पॉलिटिकल पार्टी को कि आपने किस कारण से क्रिमिनल को चुना, क्या उस जगह में और बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल पाए, ये भी उनको पब्लिश करना है। वो करेंगे पब्लिश, फिर पब्लिक के लिए के सामने में एक इन्फॉर्म डिसीजन, एक इन्फॉर्म चॉइस लेने का एक तरीका है, सशक्त तरीका है, that you take an informed decision whether to vote to this or to this or to this. Our role is to ensure that voter is fully informed, उसको सारी जानकारी रहे ताकि informed choices वो ले सके. So please popularize this, and through the medium of the media, I want to request that C-Vigil and these applications, use of technology is adopted. Friends, we had detailed meeting. So this is another thing before we come. So this is from roll to poll. At every stage, the political parties are informed, involved, and they participate. रोल के बनने के समय, रोल के पब्लिश होने के समय, ड्राफ्ट के समय, उसमें जो ऑब्जेक्शंस फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जितने आए उनके वेबसाइट पे शाम को देखने के समय हर स्टेज में, so that the entire process is transparent. Entire process gives you a confidence that it is right. So we are moving towards the purity of the role, health of the role, and inclusivity of the role. समावेशी रोल जिसमें हर ग्रुप, हर वर्ग जो कि थोड़ा सा डिफरेंशियल जिसकी डिसेबिलिटी एडवांटेजेस हैं वो भी इसमें पूर्ण रूप से शामिल हो और हमारा उसमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच हो। सो अगर एफएलसी होनी है, सिंबल लोड होने हैं, स्टोरेज है, ईवीएम्स का स्टोरेज है, उनकी मूवमेंट है, बूथ लेवल एजेंट है, पोलिंग एजेंट है, काउंटिंग एजेंट्स हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, हर स्टेज पे पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, मीडिया का इन्वॉल्वमेंट इज एंश्योर्ड. Everywhere one can see that what is happening. Now, next, if we come to the randomization of the entire forces, जितनी भी force polls को free करने के लिए, fair करने के लिए central paramilitary forces भेजी गई हैं, उनका deployment कैसे होगा? ऐसा नहीं कि इसी साइड में भेज दिया या इसी साइड में भेज दिया, ताकि जहाँ जरूरत है वहाँ evenly spread है. तो जो भी चुनाव आयोग के द्वारा ऑब्जर्वर्स अपॉइंट होंगे वो उनके सामने में पूरी फोर्स का रैंडमाइजेशन किया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया गया है, सो दैट द फोर्सेस आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली, ऑप्टिमली, एंड इन ऑल द एरियाज वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड. द ऑब्जर्वर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो टेक्स ए व्यू, एंड इट इज नॉट लेफ्ट. The local administration, the SPNO, the police nodal officer will participate, will be a part of it. The CO will be a part of it. So that as our eyes and ears, he looks at it, SPNO looks at it, and then the observer we appoint from outside who is not from the state looks at it. This is true for the randomization of the polling personnel also who goes to the booth. This is also true for randomization of the machines. So at every stage, no machine knows where I am going. No personal civil knows which polling station I will be going. No police personnel will know where I will be. So this is all randomized and in the presence of a system in which the observers also are involved. Next.
These are the agencies with whom we met yesterday: State Police, State Excise Department, GST, Directorate of Revenue Intelligence, Railway Protection Force, CISF, Income Tax, Narcotics, Airport Authority, Postal Department, Reserve Bank, Border Security Force, Assam Rifles. You would be thinking, why? ऐसा क्या है जो इन सबसे मिलके हमने कहा? ये सब पार्ट एंड पार्सल हैं हमारे फ्री, फेयर एंड इंड्यूसमेंट फ्री, वायलेंस फ्री इलेक्शंस कराने के लिए. These are all spokes which we are trying to put together into one whole. कैसे? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बिंदु हमारे सामने उठाई कल, उन सबका भी उत्तर में इसके आपके माध्यम से उनको भी दे रहा हूँ. तो कमीशन ने उनके सारी चीज़ों को रिव्यू किया. रिव्यू करने के बाद डीएम्स के साथ, एसपीज के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ सबको निर्देश दिए. तो ऑलमोस्ट 25 न्यू थिंग्स और दी थिंग्स विच विल इंश्योर दैट व्हाटएवर वी आर सेइंग हैपेंस एंड वी मेक एन अटेम्प्ट दैट इट हैपेंस. उनको आपको एक एक करके मैं बताता हूँ. कुछ ही राज्य आज का अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो ऐसे रह गए हैं जहां प्री पोल, ड्यूरिंग द पोल एंड पोस्ट पोल वायलेंस होती है. देश के बहुत सारे राज्यों में अब वायलेंस नहीं होती है चुनाव के दौरान. आपने अभी देखा पीछे जो इलेक्शन हुए उनमें कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो. सो हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे अब ये जो भी जगह जहां भी बच गया है उसको भी हम इससे मुक्त करें. तो जो डिसीजंस लिए गए हैं वो ये लिए गए हैं, सभी डीओज और एसपीज को डायरेक्ट किया गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे और कोई भी पार्टीशन अप्रोच किसी के प्रति नहीं रखेंगे. They will be on our radar. If they do so, they have been very well explained that they will have to answer for this, they will have to account for this. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करेगा कि जो भी सुविधाएं हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, जैसे ग्राउंड्स चाहिए, जैसे कैंपेनिंग का जगह चाहिए, गाड़ियों की व्यवस्था चाहिए, सबको फर्स्ट अप्लाइड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे देंगे. एक सिस्टम है जिसमें सुविधा का एक एप्लीकेशन है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जिसमें वो अप्लाई करते हैं. अगर उन्हें रैली के लिए ग्राउंड चाहिए, परमिशन चाहिए, तो उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा नहीं है कि आप एक पार्टी को दे दें और दूसरे का इंतजार करते रहें. तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होने के लिए उनको जो पहले आया उसका पहले निस्तारण करना पड़ेगा और उसको पहले देना पड़ेगा. कमीशन ने इंश्योर करने का निर्णय लिया है कि सभी पोलिंग स्टेशन पे सीएपीएफ रहेगी. दिस इज द नेक्स्ट. ये भी निर्णय लिया है कि जितने इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट और नाका हैं और रूट्स हैं जो क्रिटिकल है या जिससे मूवमेंट ज्यादा होती है, जिससे गड़बड़ी होती है, उनमें भी पैरामिलिट्री फोर्स है. ऑब्जर्वर्स जो डिप्लॉय होंगे, जैसे मैंने पहले कहा, वो पूरे फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का पार्ट एंड पार्सल रहेंगे डिसीजन मेकिंग में, ताकि निष्पक्षता पूरी तरह से बनी रहे. जो पोलिंग एजेंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित रहते हैं. सभी को कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड एसपीज को, कि उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है. लोकतंत्र में जो आगे बढ़ के हिस्सा ले रहा है राजनीतिक प्रक्रिया में, उसको सुरक्षा प्रदान करना उनका प्रथम दायित्व है और वो इसके लिए सजग है. उनको कहा कि आप सजग रहें और इसको प्रोवाइड करें. वोटर लिस्ट, जैसे मैंने पहले कहा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में रिकॉग्नाइज्ड शेयर कर दी गई है या कर दी जाएगी. सभी, ये भी एक मुद्दा आया कि एसडीएम लेवल से नीचे के ऑफिसेज में अगर शिकायत करनी हो तो बहुत नीचे जाना पड़ता है, उनके नीचे के शिकायत नहीं कर पाएंगे. तो एसडीएम लेवल में एक सिंगल पॉइंट रहेगा जहां पर एसडीएम लेवल पर ही उनके नीचे के सारे क्षेत्रों की भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. एंड देयर